خدا نے بہت بلند رکھے ہیں، کیونکہ مومن جب بلند نظر آئیں گے تو امیر المومنین بلند نظر آئیں گے۔ مہربانی کردار میں، گفتار میں، اظہار میں، افکار میں جب مومن بلند نظر آئیں گے تو علی تو ویسے بھی بلند ہے۔ اہل حق دا امام نعرہ چند لمحات میں نے اور آپ کے لینے، پھر میں آپ کے سوال لوں گا، اس پہ گفتگو تھوڑی سی کریں گے۔ تو اگر اسی پہ ہی تھوڑی سی مزید گفتگو کی جائے تو خدا ہمیں جگا رہا ہے، احساس دلا رہا ہے کہ ہر وقت تم خیر چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے کہ ہماری جھولیوں میں خیر پڑ جائے، تم چاہتے ہو ہمارے ساتھ خیر جڑی رہے، شر نہ ہو۔ کیونکہ ایک قانون میں اکثر ممبر پہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پہچانو تو اس کی ضد سے پہچانو۔ خیر کی ضد ہے شر، اگر تم چاہتے ہو خیر میں رہو اور شر سے بچے رہو تو پھر تمہارے لیے بقیت اللہ ہی ہے۔ مہربانی، پھر تمہارے لیے بقیت اللہ ہے۔ اور یقین کیجئے انسان نہ چاہتے ہوئے شر کی قوتوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، ورنہ چاہتا یہی ہے کہ ہمارے سے شر دور رہے۔ اندر جو چاہ رہے لاشعور وہ چاہتے ہے شر دور رہے، ہم خیر میں رہیں، خیر میں رہیں۔ تو اس کا مطلب آپ چاہتے ہو خیر ملے، یعنی ہم چاہتے ہیں خیر ملے تو ہمارے لیے بقیت اللہ ہے۔ تو بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرج شریف، شہنشاہ معظم اللہ کا وہ بقیہ ہے زمین پر کہ سرکار فرماتے ہیں میری وجہ سے ہی ساری کائنات کا نظام اسی انداز سے چلتا ہے کہ وہ اس کی وجہ میں ہوں، میں امان ہوں زمین والوں کے لیے میری وجہ سے۔ اگر بھائی آپس کی بات ہے، سرکار امان ہے اور سرکار کی وجہ سے سارا نظام کائنات چلتا ہے، تو اگر مارنے والی آ گئی تو کائنات ہی ختم ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، اگر کوئی تکلیف دینے والی آ گئی تو نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں میں امان ہوں، اگر نعوذ باللہ سرکار کو کچھ ہوتا ہے اور کائنات سے امان چلی جاتی پھر تو شر ہو جائے گا، اور اللہ شر کو پسند نہیں کرتا۔ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جو کہتے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ میرا نکال سے والوں نے غور تھوڑے پاک لالا دی خیر، قدم قدم صدا خیر، نعرہ حیدری۔ ہمارے برادران جو ہے نا وہ ایک جملہ بولتے ہیں سندھ والوں کے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا اس بات پہ کافی قوی ایمان بھی ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے اگر شر اللہ کی طرف سے ہے تو قیامت کے دن اللہ کو شر کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں پہ مخلوق کو پوچھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے خیر ہے، شر کی قوت اس نے صرف اور صرف آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے یہ ساتھ رکھ دیا، وہ بھی صورت میں مخلوق کو ایک سبق ملے۔ عبادت کرتا تھا ہزاروں سال، کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہوں، بڑا گھمنڈ تھا اس کو عبادت پہ، بڑی باتیں کی، مگر اس نے میری ایک بات نہیں مانی جو میں منوانا چاہ رہا تھا۔ یاد رکھنا عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، بات ماننے، امر ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، ورنہ ساری باتیں گئی۔ انسان ہے نا، گھمنڈ آ جاتے ہیں، میں نے عبادت کی، کہا عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، دیکھ لو میں نے اس کو رجیم بنا دیا ہے۔ آگے وہ بھی کہتا ہے خالق مجھے صلہ نہیں دے گا، اتنا عرصہ میں نے عبادت کی ہے، صلہ نہیں دے گا، کہا جا وقت معلوم تک مہلت ہے۔ پوچھا کرے گا کیا؟ کہا تیرے راستے میں بیٹھوں گا، تیرے راستے پہ آنے والوں کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ کہا کیا کرو گا؟ کہا بھٹکاؤں گا۔ کہا جا جتنا زور لگانے لگا، خیر والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ خیر والے، میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور آج بھی یہی ہے، خیر والے تو اس کے ہاتھ نہیں آتے، باقیوں کو دبوچ لیتا ہے۔ لو جی بات کرو کہیں اور نہ مڑ جائے۔
اسی سردار نے، اسی آقا نے، اسی شہنشاہ نے، اسی بادشاہ نے، اسی مولا نے احسان فرمایا. ایک فرمان ہے، میں چاہتا ہوں اسی پہ دو چار جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ویسے بقیت اللہ پہ بڑی گفتگو سرکار ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. کبھی کبھی سرکار کا صدقہ زبان پہ آ جائے تو بات چل ہی پڑتی ہے. چلو سرکار کا ایک اہم فرمان ہے، میں چاہتا ہوں ہماری نئی نسل تک پہنچے. بڑا کمال فرمان ہے. بادشاہ معظم فرماتے ہیں کہ ہمارے خاص اور خالص شیعہ اگر زمین پر، سندھ والوں ذرا غور کرنا، خاص اور خالص شیعہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کے لیے آئے بیٹھے ہو. کون فرما رہے ہیں؟ جن کا جشن برپا ہو رہا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ جو ہیں تو ہم ہیں. مہربانی. کون فرما رہے ہیں کہ جن کے صدقے اولادیں ملتی ہیں؟ کون فرما رہے ہیں جن کے صدقے زمین سے سبزہ اگتا ہے؟ کون فرما رہے جن کے وجود اقدس کی برکت سے ہوائیں فضائیں معطر ہیں؟ یقیناً آپ کے اور میرے وہ صاحب و زمان، وہ شہنشاہ معظم، وہ سلطان مکرم جو اپنا نام آنے پہ اپنے باباؤں کو بھی اٹھا دیتے ہیں. بہت شکریہ بابا ریاض، مہربانی سے. بابا رات میں نے اشارہ دیا تھا نا، شکر ہے مجھے تشریح نہیں کرنی پڑے گی. سرکار فرماتے ہیں ہمارے خاص اور خالص شیعہ. میں ایک جملے پہ ایک دو گزارش. تھکے ہوئے تو ہو، بس تھوڑی سی باتیں سن لو پھر سو جانا. نہیں رات کو جاگنے سو جانا ہے. سادات نے جانا ہے ادھر حرم پاک سجدہ سلام کرنے، اور ماشاءاللہ سادات ایک رول ماڈل ہیں. انشاءاللہ ان کو یہ معرفت یقیناً ہے. یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں، ان کی طرف سے جو معرفت ہے کہ دروازے پہ سجدہ سلام کرنا ہے، اندر نہیں جانا. مردوں کا ویسے بھی بھکاری دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. خاص اور خالص شیعہ. میری نگاہ ہے، میں جب زیادہ جماعیاں دیکھوں گا بھی 2-3 آئی ہیں. خاص اور وہی کرم ہو، تھکنے نہیں دیتے ورنہ آپ کے ساتھ ہی ماشاءاللہ. خاص اور خالص شیعہ. ابھی ساری رات سفر کر کے آئے کوسٹر پہ. میں نے کہا سوئیں، کہتے نیند ہی نہیں آ رہی. راجن پور سے آئے ہیں، بڑی دور ہے راجن پور. صحیح کتنا کلومیٹر ہے؟ 650 کلومیٹر سفر کر کے آئے. 13 گھنٹے کا سفر کر کے آئے بیٹھے. دیکھ لیں ماشاءاللہ حشاش بشاش ہے. تو یہ محبت صاحب زمان، یہ محبت صاحب زمان ہے. لو جی، خاص اور خالص شیعہ. بادشاہ معظم فرماتے ہیں اگر دنیا پہ، جیسا فون جلدی بند کرو، خاص اور خالص شیعہ. توجہ کرنا، مطلوب سے ہی بڑا کمال فرمانا ہے. خاص اور خالص شیعہ. میں خاص اور خالص پہ بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اگر دنیا پہ مخلوق کے لیے استغفار نہ کرتے، کائنات ہلاک ہو جاتی. فرمان ہے ایٹم بم. ہاں، کل کائنات دا سپر پاور ایٹم بم. نعرہ لو جی، 2-3 پہلو ہیں، بس مختصر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے تو میں خالص پہ بات کرتا ہوں. جو خالص کیا ہوتی ہے بچوں، میں آپ کو بتاؤں بیٹا، آل پر کا دودھ، ڈیری ملک کا دودھ دیکھ کے بڑے ہونے والے بچوں کو بھانے میں جانا چاہیے، اور جو تازہ ملک نکل رہا ہوتا ہے اس کا ذائقہ چکھنا چاہیے. یہ جو ہے وہ اور ہے، یہ ہے خالص. اس کی پہچان یہ ہے، یہ جو باہر کا دودھ ہوتا ہے اس میں جھاگ نہیں لگتی، اس میں جھاگ نہیں لگتی. یعنی دہی کے لیے بھی ایک علیحدہ ان کو پروسیس کرتے ہیں. ویسے اس میں بیٹا کیمیکل ہوتا ہے جو 2-2 3-3 دن 4-4 دن 5-5 دن اس پہ ڈیٹ ایکسپائری لکھی ہوتی ہے. مگر خالص کی اور پہچان ہے. خالص کو استعمال کرو، فوراً گرم کرو. اس کے اصول ہیں خالص کے. گرم کرو اور پھر اور ملائی تو اس میں پھر ملائی تو بہت خوبصورت نکلتی ہے. اس سے مکھن بناؤ، گھی بناؤ، جو بناؤ. خالص کے اپنے معاملہ. اور خالص جو ہوتا ہے نا بچوں، وہ بار بار ابال کے بھی خالص ہی رہتا ہے. مہربانی، بہت شکریہ. اچھا، یہ
یہ بھی بتا دوں ہر دکان سے ملتا ہے، خالص ڈھونڈنا پڑتا ہے، خالص نہیں ملتا ہر جگہ سے ڈھونڈنا. اور آج کل خالص کے نام پہ محمد کا فرمان لوگوں نے اپنی دکانوں پہ چھاپ کے رکھا ہے، من غش فلیس منا. وہ شو کر رہے ہوتے ہیں او ہمارے سے خالص چیزیں لے لو. یاد رکھنا جو خالص بیچتا ہے نا وہ بورڈ نہیں لگاتا. ایک بات میرے واہ واہ کچھ گلی علی علی بول غم نہ کول علی 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 نعرہ میں یہ دیکھیں جیسے پیکٹ والے دودھ ہوتے ہیں ایسے مولا بھی ہوتے ہیں. دجال مولا پیکٹ والا دودھ ہے اور خالص مولے جو ہم کو ملتے نہیں ہیں. بچے نے یہ دیکھو ابھی بیٹھا کھیل رہا تھا، نوٹ رکھے میں 5-5 10-10 روپے کے کاغذ کے. معصوم ہے نا ابھی، وہ اس کے لیے سب کچھ یہی ہے، اسی پہ ہی خوش ہوا پڑا ہے، لیکن اس کا ذہن چل رہا ہے. ہاں اس لیے ہمیشہ بچے عقل سے نہیں نقل سے سیکھتے ہیں. تو کرو کہیں اور نہ مڑ جائے. خالص بچوں بیٹا خالص کی بہت کمال پہچان یہ ہوتی ہے، خالص رہ کے ہی خالص ہے بیٹا. اس میں ایک ڈراپ کی بھی ملاوٹ نہیں. اگر آپ ایک ڈراپ بھی پانی ڈال دو گے بیٹا خالص پن ختم ہو جائے گا. بے شک ظاہری نظر نہ لیبارٹری میں لے جاؤ گے، اس پہ انگریڈینٹ کے حساب سے وہ لیبارٹری ٹیسٹ کر کے ایک بتا دے گی بھی اس میں کتنا وہ ہے کتنا وہ ہے. اگر خالص ہے تو پھر وہ خالص ہے. اور بیٹا جیسے گھی ہے، آپ کو تو نہیں پتا، بچوں کو بڑے جانتے ہیں بیٹا، ایک دیسی گھی ہوتا ہے، خالص گھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈالڈا. بیٹا وہ جو ڈالڈا گھی ہوتا ہے وہ آج کل لوگوں نے اسی کی طلب خدا سے کر لی، ورنہ خدا خالص بہت کر دیتا. مخلوق ایسے ہی نا، خالص میں برکت ہے. تو یہ جو بیٹا ڈالٹا ہوتا ہے نا، وہ کروڑ ڈالٹے ہوں ایک قطرہ خالص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خالص مختصر بچوں میں یہ بتاؤں بیٹا، خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی کی ملاوٹ نہ ہو، کسی سوچ کی ملاوٹ نہ ہو، کسی فضول ارادے کی ملاوٹ نہ ہو، کسی فضول خیال کی ملاوٹ نہ ہو، کسی فضول کام کی ملاوٹ نہ ہو، غصے کی ملاوٹ نہ ہو، بے صبری کی ملاوٹ نہ ہو، نشے کی ملاوٹ نہ ہو. خالص وہی ہوتا ہے نا کہ یہ ملاوٹیں نہ ہو. تو بس جب خالص ہو تو پھر فرمایا وہ ہمارے شیعہ ہیں. پہچان فرمائی بادشاہ معظم نے ہمارے خالص شیعہ. اگلی بات سرکار نے، بس میں 2 منٹ اور لیتا ہوں پھر آپ سے سوال لیتا ہوں. اگلی بات سرکار نے میں کہتا ہوں اخیر کر دی ہے. بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے خالص شیعہ استغفار نہ کرتے مخلوق کے لیے، یہ صاحب و زمان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت سے حوصلہ افزائی کی، میں شکر گزار ہوں. لیکن اس فرمان پہ میں چاہتا ہوں تھوڑے بلند ہو جاؤ. سرکار آپ شیعوں کے ظرفوں کا اظہار پسند فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں شیعہ چھوٹے ظرف والا نہیں ہوتا جو صرف اپنے لیے خیر مانگے. مہربانی، گہری بات تھی بھائی. جی شکر گزار ہوں میں آپ کا. ایس ایچ او صاحب چھوٹے ظرف والا نہیں ہوتا بس صرف اپنے میرے بچوں کی خیر، میرے گھر کی خیر، میری خیر، میری خیر، میری خیر، مجھے کچھ نہ ہو، مجھے کچھ نہ ہو. نہیں، مخلوق خدا پروردگار روح زمین پر رہنے والی مخلوق کے جھولیوں میں خیر آ جائے، اس لیے آ جائے شر نکل جائے تاکہ یہ بھی بقیت اللہ کے ہو جائے. معیار حضور یہ ہے. کتنا خوبصورت سرکار نے کتنا بڑا ظرف، یہ وسعت ظرف کی ایک بہترین علامت ہے. ورنہ ہم سب کے ظرف بڑے چھوٹے، ہم اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. زیادہ زیادہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، خاندان سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں ہیں. ہم باقیوں کو کہتے ہیں جائے بھاڑ میں، جائے جہنم میں. ارے بھائی اگر جہنم اور بھاڑ میں بھیجنا ہوتا تو سرکار ان کی سانسیں نہ گھونٹ لیتے. سرکار اپنی نالین کا صدقہ ان کو رزق دلوا رہے ہیں.
इनको बहुत कोई दिलवा रहे और अगर तक अभी इनकी सांसें नहीं खींच रहे तो फिर इसका मतलब है मानना पड़ेगा वो रहम करना चाहता है। वो रहम करना है, वो रहम के दरीचे खोल के बैठा है। खुदा की मसाजिद के जरिए नमाजियों को बुलवा के वो रहम करवाना चाहता है। ये और बात है नमाजियों को लफ्ज़ नम आज की समझ आए तो। बाबा रियाज नम आज फारसी का लफ्ज है, नम आज आग बुझाना। बात करो कहीं और न मुड़ जाए, समेटते हैं बात को ताकि मैं चाहता हूँ आपके सवालात लिए जाए। हजूर सरकार वुसअत ज़र्फ़ अपने शीरों का कायनात के सामने इजहार पसंद फरमा रहे हैं कि उनके इतने वसी ज़र्फ़ है, वो मखलूक के लिए इस्तग़फ़ार मांगते हैं। आगे फरमाते हैं अगर ये ना मांगते तो दुनिया हलाक हो जाती। साहिब ज़मान तेरे इस खूबसूरत जश्न की कसम आज तेरे नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर तेरे इस मकाम पे बैठ के तेरी बारगाह में हाथ बांध के एक अर्ज करना चाहता है। अब तक तो मैंने यही समझा था कि सरकार आपके वजूद अक़दस की बरकत से कायनात बची है, आज पता चला आप तो इससे भी बुलंद हैं। अब इस फरमान पे तशरीफ बहुत ज़्यादा हो सकती है, इन्हीं का सदका, इन्हीं के करम से। तो जैसे करम फरमाते रहते हो, करम की खैरात आपकी झोलियों में डालते रहते हैं, बस मेहरबानी किया करो, इनको संभाला करो, ये ज़िंदगी में काम आएंगी। यह हमारे बैठने का, बुलाए जाने का, मेरे घर घर शहर शहर जाने का मकसद यही है। संभालो, ज़र्फ़ वसी रखो, रहम मांगो मखलूक के लिए। अगर तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ बूस्टर नेक और गुनाहगार के मोबाइल को नहीं देखता, हर जगह सिग्नल भेजता है, जो लेना चाहे सिम ऑन कर ले, मोबाइल रख ले, सिग्नल आ जाएंगे। ये नहीं कहता कि अगला देख क्या रहा है, वो कहता है मेरा काम है सिग्नल देखना, सिग्नल भेजना, मैंने भेज दिए। अब जिसका जो दी चाहे वो उस हिसाब से इस्तेमाल करे। अगर खैर वाले इस्तेमाल करेगा तो फिर बकियतुल्लाह है, अगर शर वाले करेगा तो फिर उसका बकियतुल्लाह से ताल्लुक नहीं है। तो हजूर बस इतना ही मैंने इस फरमान पे बात करनी थी। बिस्मिल्लाह करते हैं, छोटे छोटे सवालात आपके हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे, उस पे आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए। थक गए हो तो छुट्टी। ये बिस्मिल्लाह थोड़ी थोड़ी आई। जी सवाल पूछो। मौला के लिए करना क्या है, हमें हमारे गर्दनों पे हकूक क्या हैं, हमने अब तक क्या किया, क्या वो वाकई हम सरकार के लिए कर पाए, हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो ये सवालात पूछो मोहम्मद जी। जी जी नमाज में हम जब अस्सलाम वालेकुम नबी वक्त का अस्सलाम वालेकुम बाद इबादुल्लाह सालीन पढ़ते हैं और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जो सलाम करते हैं वो किसे करते हैं? अपना सिंध से आए हुए मौला के मेहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जुमला उलमा मुत्तफिक है, ये ज़माने के इमाम को सलाम होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम पे आपने बात छेड़ी है, चलो एक बात मैं और अर्ज़ करता जाऊँ। इससे पहले हम सलाम करते हैं अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और साले अल्लाह के बंदों पर सलाम, साहले बंदों पर सलाम। थके नहीं हो तो संभाल लो, साहले बंदों पर सलाम। बड़ों बड़ों ने लिखा है ये साले बंदे आले मोहम्मद हैं, बड़ों बड़ों ने लिखा है। भाई मेहरबानी आपकी भी क्या बात है, आपने इसको कबूल किया हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े से और बुलंद हो जाओ। अगर साले बंदे आले मोहम्मद हैं तो फिर 12वां अबा साले क्यों है? मेहरबानी बाबा। और कोई सवाल? ठीक है एहसन, आखिरी सलाम ज़माने के इमाम को।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे क्या बात है, पूरी नमाज का एंड इसी सलाम पे है जी। बाकी सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, क्या बात है। दुआ कनूत में पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया नहीं अल्लाहुम्मा कुल भी बहुत शुक्रिया। अल्हम्द पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं, ये सारा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन तशहद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सारा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी बात है कमाल, किसको कर रहे हैं सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साजी ज़र्फ न झलके, खुदा की कसम आले मोहम्मद का खुदा हमारी सोचों से बुलंद है। हर वक्त ज़हनों के अंदर ऐसी चीज़ न सोचा करो कि ये खुदा है, वही इनका खुदा हमारी सोचों से बुलंद है, मावरा है। जो सोचों में आ जाए हमें क्या पता। अरे भाई आप में और हम में यही तो फ़र्क है, हम इबादत करते हैं बगैर देखे की, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं चाहता हूँ बस इससे आगे ना जाऊँ, एमी पर ना जल जाए ना। जितनी औकात है भाई। जी कोई और सवाल पूछिए। जी बेटा जी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ड्रेसिंग क्या होगी और क्या उनके दौर में ग्रेजुअली आहिस्ता स्लोली और क्या उनके दौर में वेट बच्चा पूछ रहे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ड्रेसिंग क्या होगी। लो जी किताबों में तो लिखा है एक अरब के शहजादे की माने दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। एक रिवायत ये भी है काबा के करीब रेवड़ होगा बकरियों का, बादशाह मौज़ूम उसके साथ आएंगे। लेकिन हमें अपने आप को इन बातों पे सिर्फ महदूद, अगर अरबी लिबास में ना आए, 3 पीस में आ गए, मालिक हैं जो मारिफत पैदा करो। ओए कपड़े इंतजार में हैं हमें पहने, वो चाहे जन्नत के हो। सरकार मालिक है, अम्र के मालिक है। जिस लिबास में है मार्फत इतनी हो कि उनकी पहचान होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनकी पहचान होनी चाहिए। अरबी लिबास में खैर से वो मालिक हैं, जिस लिबास में है वो आका हैं। हम उनको महदूद नहीं कर सकते क्योंकि वो अली ला महदूद के बेटे हैं। पकड़े ना जाए ना आप कि वो सैयद ने कहा था कि अरबी लिबास में होंगे तो वो दूसरे लिबास में निकल। अच्छा मैंने आपने वाज़ह कर दिया। सरकार मैंने ये क्यों कहा है, एक जर्मन बेटी का मैसेज आया मुझे, वॉइस मैसेज आया, बड़ी आश का इमाम है भाई सजाद, बहुत मौला से मोहब्बत है, क्या बात है उसके इश्क की इमाम से। उस बेटी का मुझे मैसेज आया, अक्सर मुझे करती रहती है सैयद आज मैंने खाना बनाया तो खाने में पहली रोटी मैंने अपनी माम के लिए बनाई। फिर कहती मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने महसूस किया घर में बच्चे सारे थे लेकिन मैंने महसूस किया मेरे मौला बैठे हैं। मैं मुस्कुरा के उनसे बातें करती रही तो मुझे महसूस हो रहा था जैसे मुझे कानों में जवाब भी मिल रहा है। ऐसा यहाँ मैं बात को रोक के आप वाली बात करने लगा, ओए मैं तोहफा है वो ले जाओ जमकरान से, पक्की बात करने लगा हूँ। कान साफ कर लो, मैल निकाल लो, कॉटन बड से नहीं, मैल निकाल लो जो खुद चढ़ाई है, गीबतें सुन सुन के, गिले सुन सुन के, गिलाजतें सुन सुन के, गंदे गाने सुन सुन के, ये कान से मैल मूल निकाल लो। ये जो आखिरी सलाम करते हो ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप पर सलाम, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। शर्मा शाह जी फिर कान सुनेंगे, अलैका सलाम फेर लेते हैं सलाम करते वक्त। और तो पहले आपने जवाब दे दिया, मुंह फेर लेते हैं। आप भी आपको दे रहे हैं उनका। सैयद मैं नहीं बात करना चाहता, असल में आप सादात और मुमनीन ने मुझे सफीर अमन का लक़ब दिया है। मैं चाहता हूँ अभी अमन रहे, सरकार आ रहे हैं फिर खैर होगी। असल में बस इतना ही कहूँगा, अगर वायरल ना करो तो इतना ही कहूँगा, पता नहीं इधर उधर देखने वालों ने कहाँ कहाँ देखा, तुमने तो सीधा ही देखा है ना। अब दुआ करते हैं अल्लाह करे ये भी सीधा देख ले, हम इनके लिए दुआ करेंगे, छोड़ना नहीं इनको।
इनके लिए रहम तलब करना है। और खुदा जानता है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं, तुम मोमिन ताकतवर हो, तुम्हारी दुआओं से बड़ों को पता नहीं कहाँ कहाँ से रहम मिल जाए, क्योंकि ये कानून है, तकदीरें बदल जाती है। लो जी, वो बहन जर्मन से मुझे मैसेज करती रहती है, कहती है हज पे जाने का इरादा हुआ, तो मुझे पता था इमाम हज के मौके पे काबे खैर से तशरीफ़ लाते हैं। आका जानम कहती है बादशाह को, आका जानम। तो आका जानम खैर से आए होंगे काबे में, मैं जाऊंगी मतलब, लेकिन कहने लगी क्या ही अच्छा होता जर्मन से जो सऊदी फ्लाइट जा रही है, मेरे आका मेरे साथ ही होते, क्या ही अच्छा होता हमारे साथ, जो चंद घंटे की फ्लाइट है, आका हमारे साथ ही बैठे होते। कहते मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम कुछ 4 सीटर थी। सैयद आपने सफ़र किया है ना जहाज़ खैर से, बल्कि अक्सर करबला ज़ियारत पे जाते हैं, तो वो 4 सीटर वाली लाइन थी या 5 वाली थी या 4 सेंटर में। कहते मैं उधर, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी हम बैठे, तो जहाज़ की सारी फुल थी, लेकिन एक सीट खाली थी। खुदा जाने को बंदा आया नहीं, जिसकी सीट थी वो आया नहीं। कहती है अंदाज़ा देखा अपना, थोड़ी देर बाद देखा तो एक 3 पीस में कोई साहब आए, तो फरमाने लगे मेरी वो सीट है। तो बेटी इधर हो गई, उन्होंने कहा आप बैठिए। तो पूरा रास्ता हमारे साथ वो बैठे रहे और हमारी ज़बान में, जर्मन ज़बान में गुफ्तगू करते रहे और ऐसी ऐसी बातें करते रहे, हमें भी बाद में समझ आई। कहते जब हम उतरे, हमने कहा वो कहाँ है, मैंने बच्चों को कहा बेटा वो अंकल कहाँ है जो हमारे पास 3 पीस में बैठे थे। कहते सारा देख दो के पता कहाँ चले गए। जर्मन में बातें करते थे। यही तो बात है कि हम बाद में जब मौला हैं कहेंगे हम आपसे मिल चुके। शाबाश शाबाश शाबाश। बात गौर फरमाई। तो इसलिए आका को हम लिबास पे महदूद नहीं कर सकते, वो मालिक हैं जिसमें असल है मारिफत। अच्छा मैं आपको यहाँ एक बात और अर्ज करता हूँ, जो अलामा हिल्ली जैसे लोग, मैंने भी देना पड़ेगा। अच्छा मैंने पहले ही सोचा था मैं सरकार का सद कर दूंगा, मैं वैसे आपको फ्रेश करने के लिए जुमला कह गया। आले मोहम्मद आपके लिए रखा है सरकार का सद। ये हमने ले लिया ना इनके बाबा से, ये हमारा है माशाल्लाह। क्या बात, उधर बैठ के भी अपने इमाम का प्रचार कर रहे हैं। ज्वाला है ज्वाला, और इंशाल्लाह पूरे ख़ानदान में देखिएगा बड़ा मुनफरिद निकलेगा। मैं क्या गुजारिश कर रहा था, अलामा हिली, अलामा हिली को मसला दरपेश आया, मतलूमादी किताबों में लिखा है, मसला दरपेश आया, कहीं से हल ना निकला। सोचने लगा क्या ही अच्छा होता कि मुझे इस मसले का हल पता चल जाता। अचानक ये घोड़े पे सवार है, सवारी पे सवार है, कोई एक शख्स है, इसके घोड़े में आके हाथ डाला और हाथ डाल के खुद चलने लगे और गुफ्तगू करने लगे। इसने भी कहा कोई ऐसे राह चलता ही बंदा है, कोई अरबी शरबी है या पता नहीं कौन है, राह जा रहा है। तो बेटा जागना, राह जा रहे। अब वो कहने लगे हाँ हिली तुझे मसला दरपेश है। कहने लगा हाँ यार बड़े अरसे से मसला दरपेश है, पता नहीं मेरी सुनते नहीं है या पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। पर मैं लगे तेरे मसले का हल ये है, सारा रास्ता उसको मसले का हल बताया। तो हिली को ख्याल ही नहीं है, हिली को पता ही नहीं है। अचानक अलामा हिली ने पूछा मनन तो आप हैं कौन? कहा ना साहिब हिल्ली साहब को जब पता चला आका हैं, ये घोड़े से गिरे और बेहोश हो गए। जब होश आया खैर से जा चुके थे। और बड़े करीम है, मार्फत जरूरी है, पहचान तो हो ना। बहुत शुक्रिया बेटा, बात से कान। दूसरा सवाल क्या है आपका? नाम सैयद अफाक हैदर काज़मी, सियालकोट से। अच्छा सियालकोट से सैयद आए हुए, माशाल्लाह। कौन कौन आए आप? मैं और ये दोस्त है मेरा। अच्छा जी। कल के आए हुए? जी कल। बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। जी बेटा। दूसरा सवाल ये है कि इमाम ज़माना के दौर में मोबाइल होगा और यूज़ करने देंगे वो? हाँ अच्छा सवाल है, हमारे बच्चे ने पूछा, हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए। इमाम के हवाले से जो ये पूछ रहे हैं, इमाम के दौर में मोबाइल होगा। बेटा ये मोबाइल टेक्नोलॉजी जानबूझ के सरकार ज़माना के करीम नुमाइंदों की वजह से लॉन्च हुई है, लॉन्च हुई है। बड़े बड़े असरार हैं, बस एक ही राज बता देता हूँ, इसको ही काफ़ी समझना। लोगों को बताया गया कि किसी भी कोने चले जाओ, दो बातें चलो बता, किसी भी कोने चले जाओ, तुम्हें कोई चीज़ ज़रूरत हो, अंदर गूगल है, वो तुम्हें फ़ौरन बता देगा।
बेटा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने पे मोमिन हथेली पे सवाल लिखेगा, महदी के सदके हथेली बेटा इसमें एक और बात भी है, वो भी सुनते जाओ, बड़ी कमाल है बच्चों। ये जो हमारे जहेज वारिद है, हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ये ऑफ सिग्नल खत्म, चाहे जितना भी हमारा महंगा मोबाइल क्यों ना हो, रेंज ही नहीं है, वाह वाह। पहाड़ों में चले जाए, हमारे भाई सजाद ट्रैवलिंग में रहते हैं, सफर में रहते हैं, कहीं पहाड़ों पे सफर करते करते सिग्नल खत्म। ओ सरकार के नुमाइंदों ने कहा हम चाहते हैं ये चीज बनाओ ताकि हमारे कायम की इरफान और मार्फत तुम्हारे ज़हनों में आए, मगर याद रखना ये मजबूर है, कायम के आशिक बनो तुम मुख्तार बनोगे। जहां भी जाओगे सिग्नल का मसला नहीं है। हाँ रमज अली कहाँ से आए? बिट शाह अब्दुल लतीफ शाह जी रमज की बात करें जी रमज अली। मसलत जमकरानी को सरकार कायम आले मोहम्मद ने हुक्म फरमाया कि जमकरान में मस्जिद बनाई। तो सही ये जो जमकरान में मस्जिद है और जो हमने भी इधर जमकरान मस्जिद बनाया है, असल में हसद बिन मसलत जमकरानी की वजह से जमकरान मस्जिद नाम आया है, या जमकरान का कोई लफ्जी माना उस जगह का इलाके का नाम जमकरान जिरान में जो वो चूँकि जैसे सैयद बैठे महसूस नहीं फरमाएंगे, कई लोग इनको कहते होंगे राजनपुरी, ठीक है, वो लाल हसन करोड़ वाले बैठे हैं करोड़वी, ऐसे ही है ना, लइये वाले तो ये इस तरह है। उसने उस इलाके की मुनासिबत से जमकरानी था, नाम उसका हसन बिन मसल्ला जमकरानी है। मसल्ला मीम स्वाद लाम छोटी ये खड़ी अलिफ, हसन बिन मसल्ला जमकरानी। या मीम से भी लिखा है किताब में, से 3 डॉट्स वाला से, मसल्ला जमकरानी। सरकार ने पता है इसको क्या कहा है? होए रात बात नहीं कर सका, मतलब बड़ी बात है। इसी मुलाकात इमाम के वाक़यात में मिलता है। सरकार के पास जब आया ना, वो नमाजी नमाज पढ़ के हटे, सेंटर में तो किबला थे ना, वैसे बताओ मेरा रियाज हुक्म कर रहे, सही वैसे बताओ सही। ये सेंटर में और ये चारों तरफ। अच्छा मैं एक बात ऑफ द रिकॉर्ड कहने लगा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड तो है चारों तरफ थे, ऑफ द रिकॉर्ड ये है, मैं एक नमाजी से बल्कि 2-4 नमाजी से, देखो यार ये है सेंटर, इसके गिर्द कुछ 6-8 बंदे खड़े हो जाए, इस तरफ खड़े वाले बंदे की कमर काबे की तरफ तो होगी। मैं इस वजह से पूछता हूँ, ओ भाई तूने सरकार को रुख करके नमाज पढ़ते हुए काबे की तौहीन नहीं की? कहने लगा तुझे क्या पता, तू तो मौलवी को किबला कहता है, असल काबा भी यही है। काबा भी यही है, काबा किबला हमारे इमाम ज़मान, हमारे साहिब ज़बान, हमारे प्यारे मौला, हमारे शफीक मौला, हमारे मेहरबान मौला, हमारे खैर खा मौला, हमारे सब के लिए खुदा जानता है रहमत का मंबा मौला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, करम का मुरक्का मौला। साहिब इतने अच्छे हैं, इतने हमारे बाबा भी इतने अच्छे नहीं जितने मौला अच्छे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाबा को हम कहें नहीं तू चंगा ही नहीं, मेरा प्यो ही है। नहीं इस प्यो दी भी प्यो पैर धोने ने, इस वास्ते इस प्यो ने तो दसे महदी कौन है। मैं सिर्फ वैसे ही एक जर्नल सी वो कर रहा था। असल हमारे इमाम बहुत प्यारे और बड़े शफीक हैं, कोशिश करीब होने की करके तो देखो, बड़ी खैर डाल देंगे, इतनी खैर डाल देंगे आपकी सोचों से भी बुलंद। और यकीन करो खुदा की कसम, शाह जी मिंबर पे कह जाता हूँ, आज मैं यकीन के 101% दर्जे पे कह रहा हूँ, इमाम अपने और अपनों से पर्दा नहीं है। अफाक शाह जी हिम्मत करके मोहब्बत करके तो देखो, आका की तरफ मुतवज्जो होके तो देखो, इतना खैर फरमाएंगे आपसे खैर संभाली नहीं जाएगी, परेशान होने नहीं देते।
भाई पैसे अचानक आपको मौला के मिशन के लिए कुछ चीज जरूरत पड़ गई है, आपके पास पैसे नहीं है, मतलब हम बाइकों पे निकलो मौला का पैगाम देने के लिए, सिंध वालों को कह रहा हूँ, पेट्रोल नहीं है, आंखें बंद करके सरकार को कहो आपके लिए जा रहे हैं, करीम बाबा पेट्रोल नहीं है, तो हमें तो नहीं पता पेट्रोल कहाँ से निकलता है, हमें इतना पता है जब आप आओगे तो नीचे से जमीन खजाने तो बाबा आप आओगे तो खजाने उगलेगी, बाबा अभी आप आ जाओ पेट्रोल तो मिल जाए। लाडियां किया करो अपने इमाम से, हाँ मोहब्बतें लाडियां किया करो, बड़े करीब है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कोई डरने की जरूरत नहीं, तो जो मैं डराए ना तुम उसको डराया करो, जो कहना हो नहीं नहीं मौला को नहीं बुलाना, वो मौला ये करेंगे, वो मौला छोड़ेंगे नहीं, उनको तुझे नहीं छोड़ेंगे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे वो बड़ी प्यारी बात सैयद अभी कर रहे थे कि रजत के बारे में बताते ही नहीं है, डरते हैं, डर है कि सरकार आ गए तो निज़ाम सरकार का ही चलना शुरू हो जाएगा, ये निज़ाम। हालांकि मेरा दिल कहता है कि इनको हर नमाज के साथ मासूमीन का रजत का एक फरमान ज़रूर नमाजियों को सुनाना चाहिए, ताकि कम अज़ कम इनका इश्तियाक तो बढ़े। जैसे मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, भाई हसनैन शाह जी, मतूब सही, इनाम सही, अबसार सही, जो कैसे सारे आए हो, मैं फर्दन नाम कैसे लूँ, 1 साल होता है आपको तैयारी करते हो, हम जाएंगे, शौक होता है, सोच पहले शुरू हो जाती है, ऐसे कपड़े बनवाएंगे, ऐसे जूता लेंगे, इतना किराया इकट्ठा करेंगे, कमेटी डाल लेते हैं, यानी एक इश्तियाक होता है हम जाएंगे। अगर लोगों में यही इश्तियाक डाला जाए महदी आएंगे तो हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मरकज यही होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा, और कुछ सवाल पूछो। लामा साहब, जी मेरा सवाल ये है कि खुतबे ग़ीबत पे या मुलाकात बा इमाम में काफ़ी सारे रिवायतें आपसे हम सुनते हैं काफ़ी उलमा से कि इमाम ज़माना का शेख मुफीद को जो दीदार हुआ है, या काफ़ी सारे जो उलमा हैं उनको दीदार हुआ है, ठीक है। तो शेख मुफीद की एक रिवायत है कि मौला ने बताया कि ग़ीबत कुबरा के बाद मेरा किसी को भी दीदार नहीं होगा और मैं किसी पे भी ज़ाहिर नहीं होगा, जो ये शख्स दावा करे कि मैंने मेहदी को देखा है तो वो झूठा है। इस सिलसिले में थोड़ा हमें समझाएं। वहीद भाई, उस्ताद वहीद जी, बुरगरी वहीद बुरगरी भाई दादू से है वे हमारे भाई। अब सर मेहदी हो गया हैं जी, अब वहीद मेहदी हो गया। हाँ बिस्मिल्लाह वहीद मेहदी भाई। तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, बंदा दावा नहीं कर सकता, वो तो कर्म कर सकते हैं, बंदा दावा नहीं कर सकता। अब यहाँ जो आप कह रहे हैं लिखा है तो ये डेट नोट कर ले, 260 हिजरी में सरकार की गैबत का आगाज़ हुआ, 70, 69, 71 या 73 साल है गैबत सुगरा, उसके बाद बनती है गैबत कुबरा। चलो 73 साल ऐड करो ज़रा, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है मुझे फौरी बताना, 260 प्लस 73 कितने बनते हैं? 333। देख लो, सोच लो, 23, 33। बस अगली बात है किताबों से। पीर खादिम शाह जी ये नोट कर ले सारे। आपकी तबीयत ठीक हुई है? शुक्र है। नोट कर लो, 410 हिजरी में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मुलाकात शेख मुफीद से हुई। 410 मैंने जान के कहा, तारीखों का पता होना चाहिए। 410 में सरकार की तरफ से खत भी आया है और बात भी हुई है, और वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अब इस पे वहीद भाई बस एक ही बात करूंगा, ये ऐसे समझो एटम बम बात है, तबरेज एटम बम बात है। सरकार के तौक़ियात मुबारका है जो हमारे पास है, बल्कि मतलब मैं गुजारिश करूंगा हरीरा सिंह को, आप जो टीम हो, आप मुझे याद करेंगे तौक़ियात मुबारका पे प्रोग्राम करेंगे ताकि लोगों को सरकार के फरामीन पे थोड़ी आगाही हासिल हो। फिर ओन शाह जी, सैयद सरदार सादात उज़ाम मवालिया ने हैदर करा, उन तौक़ियात मुबारका में एक जुमला सरकार का बड़ा कमाल है, अगर हमारे शिया हमारे एक काम के पाबंद होते हमारी मुलाकात में देरी ना होती। भाई बहुत शुक्रिया, देरी ना होती, हम शर्फ ज़ियारत बख्शते उनको। जी और कोई सवाल?
कराची से छुट्टी लेके कंपनी से निकलने लगा तो मैंने जीएम को बताया कि मैं सरदार के जश्न में जा रहा हूँ। तो बोला लाहौर क्या करने जा रहा हूँ, उनकी तो विलादत ही नहीं हुई है। तो मैंने बोला भाई ये तो कौन सा, ये हमारा ईमान है, उनकी विलादत हो चुकी है। नहीं सही, आपने उनको कहना था दुआ करने जा रहे हैं, जल्दी विलादत हो। आपका खुदा आपके साथ, हमारा खुदा हमारे साथ। मैंने बोला सही, आप ये मेरे वाला जवाब दे। सही, ठीक है, आप ठीक कह रहे, विलादत नहीं हुई। सही, दुआ करते हैं अल्लाह करे उनकी जल्दी उनको आना तो चाहिए ना। सही, उन्होंने जीएम को कहें, सही आप जैसे जीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं कंपनी के, कोई कायनात का भी तो जीएम होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर किसी का दिल दुखे तो इंतहाई माजरत के साथ असायर उल बायर किताब में मैंने एक फरमान पढ़ा है, जिससे आप तशरीह कर दे तो बेहतर होगा कि हमारे ज़हूर में हमारे शियों के अमाल रुकावट हैं। इमाम शहनशाह मुअज़्ज़म का फरमान। मुश्तबा नाम है, मुश्तबा भाई ने पहला जुमला कहा किसी का दिल दुखे तो माजरत, कोई माजरत करने की जरूरत नहीं। क्यों दुखी इनके दिल, इनको सोचना चाहिए। यही बादशाह फरमान जो फरमान फरमा रहे हैं कि हमारे ज़हूर में रुकावट है वो लोग जो हमारी बात नहीं मानते, हमें तो मानते हैं, बात नहीं मानते। वाह, मैंने मुख्तसर से उसको जरा चेंज करके आपकी सोचों के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक